because once a body has been declared as public authority, always remember it is under the purview of RTI. So you can take information from those institutions or organizations which are public authority in nature. So अब उसके detail में I'm not going. एक बड़ा important सवाल जो बचा हुआ था, and that was the nature of the judiciary, whether the judiciary is a state or not. अब इसमें कुछ चीजें जो हैं which are very much important, like very recently the judgment of Bombay High Court, that skin to skin contact. So if you are following that case, then in that case issue was raised, and what is the issue? The issue is the judge has violated or breached the privacy of the minor and simultaneously also disclosed her identity. And we all know that the identity of the minor in the case of sexual offenses cannot be disclosed. And if it is being disclosed, then it is considered as the violation of her right to privacy. So this is something which is prohibited. Now the issue arises whether the parents of that minor girl on the behalf of her can file a petition against the judge for the breach of privacy and for the disclosure of identity. Ma'am, you are not audible. I don't know if someone else is facing the same issue. I have tried to plug in my earphones and again, but there seems to be some issue. मेरी आवाज नहीं आ रही तुम लोग को? मैम यू आर ऑडिबल प्रॉपर्ली. नो मैम कोई दिक्कत नहीं है. उस जो मेरे पास नेटवर्क इश्यू होगा. तुम चेक करो, फिर कुछ दिक्कत होगा तुम्हारे एंड पे. You try to you exit and then try to join again. ठीक है? मैं ऑडिबल हूं ना बाकी लोगों को सबको? यस मैम. ठीक ठीक ठीक. तो अब जैसे इसमें क्या इशू था, इसमें इंपॉर्टेंट इशू ये है कि whether the parents of that minor girl on behalf of her can file any petition for the breach of her fundamental right. This is possible only in that circumstances when the judiciary is a state. Now the question arises whether judiciary is a state or not. अब इसमें क्या है कि there are set parameters, and now we are aware that where on how much parameters a particular body should be qualified to be declared as a state. तो judiciary के केस में जब आप लोग देखोगे तो judiciary, the courts, High Court and Supreme Court, they are mentioned in the Constitution. So basically they are constitutional bodies. They are appointed by the government, not directly, indirectly, but yes, obviously by the government. The second important thing is they all are receiving salary from the government. So they are not substantially controlled because yes, obviously judiciary is an autonomous body, but appointment mein there is a say of the government. They are constitutional bodies and they are performing public function, which is again something which is very much important. So if you are going to apply the cumulative effect theory, then it seems that the judiciary should be declared as a state. And this issue has been raised before the Supreme Court at various point of time. जैसे मान लो कि इसमें important चीज क्या होती है, जैसे मान लो कि मेरा अगर fundamental right breached हुआ, I approached to the court and the court has rejected my petition under Article 32. Remember, this is the responsibility of the Supreme Court to protect my fundamental right because 32 is also my fundamental right. But what Supreme Court has done? Supreme Court has dismissed my petition. Or suppose they have given a judgment, but that decision is not protecting my fundamental right, but that is violating. Then in these type of cases, can I appeal a petition against a judge that the judge is violating my fundamental right? For this purpose, judiciary should necessarily be considered as a state. If we are applying the parameters of the state over the judiciary, then ideally the judiciary should be a state. But in different judgments, the Supreme Court has held that we are not a state. अब इसमें दो चीजें important है. पहली बात important ये है कि when we read the definition of Article 12, the Constitution makers have put legislature, executive, and local authorities and other authorities, all these bodies under the definition of a state. It was not like that they were not aware about the judiciary, but the term judiciary has not been put there under Article 12. So what indication they wanted to give? क्या वो ये कहना चाहते थे कि judiciary is not covered under the definition of the state? Was it their intention, or they wanted to leave it up to the judiciary that whether they want to come within the purview of the state or not?
If we are going to apply the parameters, ideally the judiciary should be state. The first case in which this issue was raised, that the name of the case is Naresh versus the state of Maharashtra. You can write down the name of the case. Naresh versus state of Maharashtra, AIR 1967. AIR 1967. मतलब 1967 का जजमेंट आएगा, साइटेशन इसका लिख लेना. In this case, for the first time, the Supreme Court has held, Naresh versus State of Maharashtra, the Supreme Court has held that judiciary is not a state. Judiciary is not a state. So if judiciary is not a state, it means it is very much clear that fundamental rights are available not against the state. So not against the judiciary. So if the judiciary is going to breach the fundamental right, then whether there is any remedy available against the judiciary or not. The same issue was raised again in the case of Parmatam Sharan versus Chief Justice, AIR 1964. राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट है वैसे, AIR 1964 राजस्थान 13, परमात्मन शरण वर्सेस चीफ जस्टिस. इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह डिसाइड किया कि द फंडामेंटल राइट्स, और इफ थ्रू द जजमेंट द जुडिशरी इज गोइंग टू ब्रीच समबडीज फंडामेंटल राइट, then a petition cannot be filed against the judge because judiciary is not a state. Judiciary state नहीं है. यानी जो आप लोग का नरेश का जजमेंट था उसी को इस केस में इन्होंने वो किया है, एस्टैब्लिश किया है कि judiciary is not a state. What second thing they are saying? They are saying the second thing is, if anybody has any problem or dissatisfaction with the judgment, then the option of appeal is always there. So judiciary, ideally, why under Article 12 term judiciary has not been put there? Because maybe the constitution makers have believed that judiciary can never breach the fundamental right of any citizen because they are the ultimate protector and they are the protector of the constitution as well. That's why in the judicial scheme, in the judicial setup, there is a process of appeal. But in this case, in the case of Parmatman Saran, the Supreme Court has said the process of appeal is there, but whenever the judiciary is performing judicial function or the judges is performing judicial function, listen me very carefully, when the judges are performing judicial function, they are not a state. But when they are performing administrative person, they can be state. So इसको बड़ा ध्यान से समझना है कि how they are going to differentiate the role of the judge as a role of a person as a judge and as an administrator. When he is working in a judicial capacity, even if you feel that he has violated your right, no remedy will remain available under Article 32 or 226. Lekin when the same judge or the same person is performing the administrative function, then in that circumstances the remedy would be available. अब यहाँ पे जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस आप लोगों ने देखा होगा सुभाष चंद्र अग्रवाल का, अगर आप लोगों को पता हो, that was related with RTI. What are the facts of this case? Subhash Chandra Agrawal has filed a RTI before the Supreme Court और उसमें उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने ये मांगा कि kindly provide me the declaration of the assets of property which has been made by different High Court and Supreme Court judges to the Chief Justice of India. तो उन्होंने क्या बोला आरटीआई में ही saying कि provide me information. What information he is going to receive from CPIO, Supreme Court? This information cannot be provided क्योंकि ये एक ऐसी information है which is protected under Section 8 of Right to Information Act. आप लोगों को पता होगा, अगर आपने आरटीआई पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो उसको खोल के देखना. Section 8 of RTI Act provides exemption. Exemption means under what circumstances the information cannot be provided. So CPIO is answering in his reply that as according to clause 8 of Right to Information Act, I cannot provide you these information. इसके अगेंस्ट में सुभाष चंद्र अग्रवाल CIC से होते हुए चले गए, CIC के पास गए और CIC से होते हुए ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया. हाई कोर्ट में आया. अब नाउ listen me carefully because this is a unique case. When the matter was brought before the High Court has decided that Chief Justice Office comes under the definition of public authority. So they come within the purview of Right to Information Act, and the CPIO should provide this information
to the information seeker. इसका मतलब अब जो है सीपीआईओ जो होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो मिस्टर सुभाष चंद्र अग्रवाल को ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगा. रिमेंबर व्हाई दिस केस इज यूनिक. दिस केस इज यूनिक बिकॉज अगेंस्ट द डिसीजन of High Court, Supreme Court has filed a writ petition before the Supreme Court against the decision of the High Court. You are getting my point? In the order of the judiciary, Supreme Court is the highest court. But why this judgment is unique, this decision is unique, because before the High Court, Supreme Court is pleading against the decision of the CIC. पहली बात तो CIC के ऑर्डर में, क्योंकि CIC ने बोला कि आप इनको इंफॉर्मेशन दोगे, CIC के ऑर्डर में प्लीड कर रहा है सुप्रीम कोर्ट बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट. एंड वंस द डिसीजन, द जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट दैट चीफ जस्टिस ऑफिस comes under the purview of Right to Information Act, the same Supreme Court is filing appeal before the Supreme Court against the decision of the High Court. So how Supreme Court can do this? Because Supreme Court is the highest court. So how Supreme Court can file a petition against can file an appeal against the decision of the High Court before the Supreme Court. So remember, in this case, ये केस उठाया भी गया था कि ये क्वेश्चन भी उठाया गया कि how Supreme Court can be a party in the High Court. So what Supreme Court has said at that point of time, Supreme Court has said that when we are contesting before the Delhi High Court, or when we are filing an appeal before the Supreme Court, at that point of time, we are not doing these things in our judicial capacity, but we are doing such things in our administrative capacity. So this is the difference. In the judicial capacity, High Court में Supreme Court नहीं आ सकता, but in the administrative capacity, they say that we are a state. So because we are a state, so we are covered under Article 226 as well as under Article 32. So in the case of Paramatman Sharan versus Chief Justice of India, the Supreme Court has very clearly mentioned that once we are performing administrative function, we are a state. But whenever we are performing judicial function, we are not a state. तो इसमें एक चीज याद रखना, this is something which is very much important. Administrative function का एक मैंने example दिया जो मैंने आपको बताया. The second thing is appointment, promotions within the Supreme Court and the High Court domain. मतलब उनके जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो आपकी 226 और 32 के परव्यू में आएंगी. But whenever the judges are performing their judicial duty, they are not state. So any right, any remedy cannot be claimed against the judgment or the order of the High Court or Supreme Court under Article 32. If you are feeling deprived or if you are dissatisfied, then in both the circumstances, the option of appeal is available. जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये जो सायरा बानो का केस आया ट्रिपल तलाक पे, इसके पहले एक केस आया था. एंड व्हाट वाज द केस ये था कि अब आप लोगों ने देखा होगा क्या नाम है उनका, उपाध्याय, अश्विनी उपाध्याय. He's very famous for filing different kind of PILs. He filed a petition on behalf of Muslim women, but in this case Muslim women is not the petitioner. He has filed a petition on this basis that triple talaq is unconstitutional. But the petition was rejected by the Supreme Court. On what basis? On this basis that the petitioner has no locus and this is not the case in which the public interest is involved. तो अब ये PIL का मैटर था कि PIL का मैटर नहीं था. अब इसमें मान लीजिए कोई, लेकिन इसमें एक चीज और है, इसको क्यों पढ़ा जाता है. उन्होंने बोला एक तो पर्सनल लॉस का इशू था जो मैं आपको आगे बताऊंगी कि whether personal loss comes under the purview of the definition of लॉ और नॉट, इस पे मैं आऊंगी. पर इसके अलावा जैसे इस केस में उन्होंने जैसे इनकार कर दिया, तो अगर इनकार कर दिया तो इफ देयर इज अ मुस्लिम वुमन हु इज अफेक्टेड फ्रॉम ट्रिपल तलाक, शी सपोज, पर हाँ इस केस में ये इशू जरूर है कि इन्होंने इसको PIL के रूप में एंटरटेन नहीं किया. लेकिन जो अब आपका सबरीमाला वाला इशू आया था, इन सबरीमाला केस ऑल्सो द पेटिशनर हैज नो लोकस इन द मैटर. क्यों लोकस नहीं था? बिकॉज नाइदर देवर Hindus और नॉर देवर द फॉलोअर ऑफ लॉर्ड अयप्पा. इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके कारण मैं आपको ये चीज बता रही हूँ. यहाँ पे इन्होंने बोला दैट petitioner has no locus. There also the petitioners are not the believer of Lord Ayappa. But in the case of Sabrimala, the petition was admitted
by the Supreme Court, while in the case of triple talaq, the petition was dismissed by the Supreme Court. And in both the cases, the similarity is the petitioner has no locus in the case. तो क्या ये हम कह सकते हैं कि अगर आपने सबरीमाला में पेटिशनर का लोकस ना होते हुए भी इसको एंटरटेन किया और यहाँ पे आपने ट्रिपल तलाक के केस में एंटरटेन नहीं किया, देन बेसिकली यू हैव द राइट ऑफ द पेटिशनर. तो यहाँ पे याद रखना कि इन सच टाइप ऑफ केसेस, as per the judgment of the Supreme Court, even if the petition is going to be dismissed, you have no fundamental right against the High Court or the Supreme Court. Dismiss means dismiss. You can exhaust any other remedy, like you can file SLP from High Court to Supreme Court, but yes, you cannot file any petition for the breach of your fundamental right, because the circumstances, facts are different in both the cases, but rest of the things are very same. And the most important similarity is in both the cases, the petitioner says no locus. So I think now the things are clear to you. Please write down one more case, and the name of the case is Rupa Ashok Hura versus Ashok Hura. It is also a very famous case related with curative petition also. 2002 का judgment है. Rupa Ashok Hura versus Ashok Hura, 2002, SC 177. In this case, once again, the Supreme Court has held that judiciary is not a state under Article 12. In this case, again, the same thing has been held that judiciary is not a state under Article 12. So now it is very much established fact. The Supreme Court has properly decided in many cases that whenever the judiciary or the judges are performing judicial function, they are not a state. But once they are performing the administrative function, they are a state. So I think things are clear to you. And if it is clear, we can move ahead to the next case. Any question? कोई सवाल है तुम लोग का? चलो नहीं है तो next, let's come to the next case. The next case. Ma'am, it's clear. It's clear. You can proceed forward. Okay, okay. हाँ बोलो. Ma'am, judiciary they themselves are deciding that the judiciary doesn't come under the state. Then how, ma'am, this logic? That is the issue. That's why the judiciary has not kept under the definition of a state. They themselves are deciding. और अगर आप ये कह रहे हो कि they have violated your fundamental right, then again they are going to decide the same thing, that whether they have violated or not. So this is in the violation of the natural law of justice. So on your part, you are absolutely right, but we don't have any other mechanism. Because at some point of time there should be the finality of judgment, and that's why there is Supreme Court. अब उनके अगेंस्ट में आप कौन सी बॉडी क्रिएट करोगे? तो मैंने आप लोग को उस दिन जो बताया था, अगर आप लोग को याद हो, जो मैंने आपको सिंहासन बत्तीसी का एग्जाम्पल बताया था, वो मैंने इसीलिए बताया था कि प्रिज्यूम किया जाता है कि इतनी बड़ी पोजीशन पे जब लोग कोई बैठेगा, क्योंकि सोचो 135 करोड़ लोगों में गिने चुने लोग होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, जो जजेस बनते हैं. So their level of competence and sensitivity should be so much high that it cannot be presumed that ever they can even violate the fundamental rights. You know, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि काबिलियत होनी. इसीलिए जब हम लोग आगे राइट को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि हाउ अधिकार एंड राइट दे आर नॉट द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर. गलत हम टर्म यूज करते हैं. राइट का ट्रांसलेशन अधिकार नहीं होता. तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये प्रिज्यूम किया गया कि जजेस कभी ऐसी कोई गलती कर ही नहीं सकते हैं, और अगर करेंगे देन हु विल जज द जज, एज यू हैव वेरी राइटली रेज्ड अ पॉइंट, कि आप उन्हीं के अगेंस्ट में जाएंगे तो वही डिसाइड करेंगे. और इसीलिए इसमें कहा गया कि नॉर्मल प्रोसीजर को आप फॉलो करो, बट दे कैन नॉट बी डिक्लेयर एज स्टेट, क्योंकि अगर वो स्टेट डिक्लेयर होते हैं तो फिर से वही इस मैटर को डिसाइड करने वाले हैं. सो इन अ वे देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बट बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन, सो दिस इज द प्रेजेंट पोजीशन. और द क्वेश्चन इज वेरी मच राइट. लेकिन वही मैंने बताया कि हमेशा प्रिज्यूम किया जाता है कि जितनी हाई पोजीशन पे आप बैठे हैं, आपकी गलती करने के चांसेस उतने कम होने चाहिए. एंड दिस इज द रीजन व्हाई जुडिशरी हैज नॉट पुट अंडर आर्टिकल 12, राइट. तो इसीलिए तो उस जज का क्रिटिसिज्म हो रहा है ना, जो बॉम्बे हाई कोर्ट वाला है. मतलब यू आर ब्रीचिंग द प्रिवेसी ऑफ अ माइनर. सो इफ यू आर अ हाई कोर्ट जज, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट यू मस्ट हैव एटलीस्ट दिस मच ऑफ नॉलेज. और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि शी वाज एडिशनल जज इन द हाई कोर्ट and now her confirmation has been stayed. तो कायदे से तो ये सब चीजें होनी नहीं चाहिए. इतने बड़े लेवल पे इस तरीके की गलतियां की जा रही हैं, तो इसका मतलब वी शुड थिंक अबाउट द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ जजेस वंस अगेन, व्हिच इज अ वेरी हाईली क्वेश्चनेबल थिंग. और इसको तुम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में देखा भी है
इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट डिबेट कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाए। खैर अभी हम उसमें नहीं जाएंगे बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो अभी ये चीजें तो समझ में आ गई ना जो मैंने बोला? Yes. चलो फिर नेक्स्ट केस पे आ जाओ। इस केस में ऐसे कोई दम नहीं है पर तुम्हारे कोर्स में केस मटेरियल में दिया हुआ है तो मैं बता रही हूँ। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राधे श्याम राय 2009 का जजमेंट है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राधे श्याम राय। देखो इसमें जो है द स्टेटस ऑफ उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान वाज चैलेंज। उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान, आप सब लोगों को मालूम है कि वेस्टर्न यूपी जो है ये शुगर केन का हब माना जाता है। जैसे आप लोगों ने एडम स्मिथ की थ्योरी पढ़ी होगी या डेविड रिकार्डो की थ्योरी सुनी होगी, तो उसमें उन लोगों ने एक चीज बोली है। उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपको इकोनॉमिक पावर बनना है एक कंट्री को, तो सबसे पहले उसको अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए, राइट? एंड व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया? द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया इज एग्रीकल्चर, right? But the problem is the agriculture sector is still largely unexplored as per the required efficiency. Unexplored है, we are not able to explore ourselves. और उसके अलावा मैंने आप लोग को बताया था जैसे जो फार्म रिफॉर्म्स भी आए हुए हैं, इसको भी थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करते हैं तो जैसे इसमें इशू क्या है, द एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो कोविड ने हम लोग को एक बहुत बड़ा संदेश दिया, और वो क्या संदेश था मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि द वर्ल्ड नीड अ सस्टेनेबल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। हमने क्या किया, वी हैव डेवलप्ड द मॉडल, द प्रेजेंट इकोनॉमिक मॉडल विच इज बेस्ड अपॉन कंज्यूमरिज्म। तो कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या होता है? वी बाय अननेसेसरी थिंग्स, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स देयर इज नो नीड ऑफ सच थिंग्स, दे आर लग्जरीज। तो अभी जो कोविड आया, कोविड ने क्या किया, there is a loss of $16 trillion to the entire world during this period of COVID। $18 ट्रिलियन का इकोनॉमिक लॉस हुआ है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन ऑल द डेवलप्ड कंट्री देयर इज अ क्राइसिस ऑफ फूड एंड दे आर फेसिंग अ शार्प इशू रिलेटेड विद अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट, the number of unemployed youth is increasing। और अभी आप लोगों ने देखा होगा अगर, तो यूरोप में जो लॉकडाउन है वो जुलाई तक बढ़ा दिया गया। so their economies are going to face a very serious crisis situation। तो अब इसमें क्या दिक्कत हो रही है? इसमें दिक्कत ये हो रही है कि the country like India with such a huge population, still we are not facing the same kind of crisis, but the rest of the world is still facing। उसका एक मेन रीजन क्या है? द नीड बेस्ड इकोनॉमी एंड द ग्रीड बेस्ड इकोनॉमी। तो जो लग्जरियस आइटम पे बेस्ड चीजें थी वो बैठ गई, वहां पे रिट्रेंचमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। दूसरा क्या है कि इंडिया इज अ ब्लेस्ड लैंड बिकॉज इट इज द मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे पानी जो है अबंडेंस में है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पे साल भर खेती होती है। तो ये यहाँ के लोग अगर ढंग से रहे, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने आज तक रहना नहीं सीखा है, तो हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं, और हम कभी थे। बट द प्रॉब्लम इज द कन्फ्लिक्ट विद इन द कंट्री बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजन। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो टाइम आया आपका कोविड का, इसने एक नई चीज सिखाई। और वो क्या चीज सिखाई? ओनली द नीड बेस्ड मॉडल कैन बी सस्टेनेबल, नॉट ग्रीड बेस्ड मॉडल। तो अब क्या हो रहा है, ओवरऑल अक्रॉस द ग्लोब देयर इज अ डिस्कशन अबाउट द न्यू मॉडल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें नीड बेस्ड मॉडल की जब हम बात करते हैं, देन द फर्स्ट नीड इज फूड। फूड हो गया आपका, वाटर हो गया। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग तो हर चीज को कमर्शलाइज करते हैं। न्यूयॉर्क में वाटर की ट्रेडिंग शुरू हो गई है। और अगला वर्ल्ड वॉर, जैसे अभी आप देख रहे हो ना कि चाइना इज इंटरफियरिंग अ लॉट इन नेपाल, एंड इंडिया को क्यों बार बार डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है? बिकॉज इंडिया इज सो मच रिच इन द नेचुरल रिसोर्सेज। वाटर हो, फर्टाइल लैंड हो, ये अकेली ऐसी जमीन है जो दुनिया भर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। तो इसको हमेशा डिस्टेबलाइज इसलिए किया जाता है कि अगर ये पीसफुल रही तो ये राइज कर जाएगी। और इसमें आप याद रखना कि जो ग्लोबल डेवलपमेंटल मॉडल है, इट इज बेस्ड अपॉन कन्फ्लिक्ट, and the conflict is only for one thing, that who is the most powerful economy of the world। We have seen the cold war between America and Russia, and presently we are seeing the war between America and China। तो पूरा का पूरा जो
लड़ाई चल रही है वो सुपरमेसी को लेकर के है। तो अब इंडिया जैसी कंट्री जो होती हैं, इनके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? एग्रीकल्चर। और अगर आप फोरकास्ट देखोगे, देन बाय 2024 द लार्जेस्ट सेक्टर which is going to register the highest percentile of growth, that is the food processing industry. 61 लाख करोड़ की इंडस्ट्री आज की तारीख में इंडिया में है, 61 लाख करोड़ रुपए। लेकिन इसमें आप ये याद रखो कि ये जो आपका पूरा मॉडल है फूड सप्लाई चेन इंडिया का, इसमें किसान कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। वी कैन एनहेंस आवर पोटेंशियल लाइक एनीथिंग, बट फॉर दैट वी नीड फार्म रिफॉर्म्स। एग्जिस्टिंग सिस्टम में हम नहीं कर सकते। अब फार्म रिफॉर्म्स के लिए द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस सम बिल। द प्रॉब्लम विच आई फील कि सरकार को पहले स्टेक होल्डर से डिस्कस करना चाहिए था। लेकिन इसमें एक इशू और है कि इस पे अब भी क्या हो रहा है, बिल में कहीं कहीं पे ग्लिचेस हैं। देयर शुड बी अ डिस्कशन एंड दोज ग्लिचेस शुड बी रिमूव्ड। लेकिन अगर इस पे कभी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी आज की सर्कमस्टेंसेस में farm reforms are the dire need of the circumstances, because from 1990 to 2020 3 lakh farmers have committed suicide, but nobody have ever raised the question कि why they are committing suicide, why there is no reform in the agriculture sector. दूसरी एक important बात, जब आप इसकी legality की देखते हो तो उसमें एक चीज याद रखना, ideally there is no need of any conflict. क्यों? जैसे आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि agriculture is exclusively in the domain of the state list. यूनियन का उस पर कुछ भी लेना देना नहीं है। स्टेट क्या करता है, इंट्रा स्टेट जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है वो स्टेट में आता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट में आता है, लेकिन दे आर सब्जेक्ट टू एंट्री 33 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। तो एंट्री 33 में जो एडिबल्ड आइटम्स होते हैं, इनकी ट्रेडिंग और प्राइस को से रिलेटेड लॉ बनाने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट को है। So 26 and 27 they should be read in consonance with entry 33 of the concurrent list. और हम लोगों ने क्या देखा है कि on the subject matter of the concurrent list the both can legislate. So suppose states are not agree or happy with the legislation of the center, then they can do two things. Firstly, they can request president that we do not want to accept this law. The second thing is they can say that we want to modify the legislation which has been passed by parliament, and we will modify it according to the requirement of our own local people. So for that purpose they can use article 254 subclause 2. तो आप इस चीज को भी कर सकते हो, क्योंकि वन नेशन वन मार्केट का जो कॉन्सेप्ट था, दैट वाज द बेसिक रिकमेंडेशन ऑफ द स्वामीनाथन कमेटी। एंड व्हाट वाज द पर्पस? द पर्पस इज टू एनहेंस द पोटेंशियल ऑफ एग्री सेक्टर इन इंडिया। और अगर हम एग्री सेक्टर में काम कर जाते हैं और जिस पर्पस के लिए चीजें की जा रही हैं उसको थोड़ा सा भी अगर हम अटेन करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो फूड वेस्ट होता है इंडिया में, पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल को मिला करके उसकी वर्थ साल की लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की है। एंड द बेसिक रीजन इज वी डोंट हैव सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर टू मैनेज दिस काइंड ऑफ ह्यूज प्रोडक्शन। तो हमारे पास वेयर हाउसेज नहीं है, हमारे पास गोडाउन्स नहीं है, जिसके कारण कि हम इन चीजों को स्टोर नहीं कर पाते और ये सड़ जाते हैं। तो अगर इस चीज को टैप किया जाए, एंड दैट इज द रीजन, द आर्ग्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग certain food items out of the purview of Essential Commodities Act, क्योंकि उसमें आप एक certain परसेंटेज से ज्यादा चीजों को होर्डिंग नहीं कर सकते। तो इसमें इन्होंने बोला है कि ये जो 1 लाख करोड़ रुपए वेस्ट हो रहा है, इसमें इन्वेस्ट तभी होगा जब हम लोगों को इसकी रखने की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। So there are so many issues. What basically I am trying to say, agriculture is a very untapped area. So if we are going to raise our potential in the field of agriculture, obviously the India cannot be self-reliant without agriculture reform. And the concept of economic justice cannot be fulfilled without strengthening the financial condition of the farmers. तो मुझे लगता है कि इस पे बहस होनी दोनों में बहुत जरूरी है, और फार्मर्स को भी जो ग्रुप्स हैं इनको सरकार से ये डिस्कस करना चाहिए कि इनका क्या सजेशन है, what basically they want. The problem is they are not telling what they want. They are saying only thing, you withdraw all the 3 legislation. You should come up with the better idea. You say this is our plan, we want these things from you. Why are you not saying about that? Because 3 lakh farmers have already committed suicide in last 30 years. So there should be some discussion. If there is no discussion, then the agriculture sector, it cannot attain the kind of
ग्रोथ जो कि इसमें पोटेंशियल है करने का। तो मेरा बेसिकली, मैंने आपको क्यों बताया ये कि ये जो गन्ना किसान संस्थान बनाया गया था, इट हैज बीन, हाँ बोलो मैम, एक फार्म लॉ से ही डाउट है मैम, एक बार पूछ लें आपसे। हाँ पूछो पूछो। मैम जैसे आपने बोला एंट्री 33 के अंदर वो एडिबल ऑयल, लेकिन मैम जैसे पंजाब एंड हरियाणा है वो एडिबल ऑयल जैसे ऑयल ये सारी चीजें नहीं उगाते मैम, वो ग्रेन्स उगाते हैं। तो इस बिहाफ पे तो मैम उसमें उनकी कॉम्पिटेंसी थी नहीं स्टेट की लॉ बनाने की। और मैम रिलेक्टेंस क्यों हो रही है गवर्नमेंट वापस लेने के लिए, मतलब मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही थी मैम। क्या नहीं, तुम्हारी आवाज कट गई बीच में फिर। मैम गवर्नमेंट क्यों नहीं लेना चाहती है, वो कह रही है हम कुछ भी हो जाए हम ये लॉ वापस नहीं लेंगे। तो मैम वो चीज मुझे थोड़ा समझ नहीं आई थी मैम। क्यों लेना दे, नहीं मुझे ये समझ में नहीं आता कि लेना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि यू मे अपोज द लेजिस्लेशन बिकॉज यू हैव डायरेक्ट स्टेक इनटू दैट थिंग, बट व्हाट आई एम सेइंग वी नीड सम एक्सपेरिमेंट। कुछ तो हम करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में कि इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। मेरा मेन कंसर्न ये है कि द फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग, दैट इज फाइन, वो भी तुम पूरा उसमें पढ़ोगे तो उसमें डर बहुत ज्यादा क्रिएटेड है। दूसरी चीज ये होती है कि एक डेमोक्रेसी में सरकार के पास पीछे जाने का ऑप्शन हमेशा होता है। तो आप जब मान लो तुमने एक आईपीसी बनाई या विमेन रिलेटेड लेजिस्लेशन बनाया, जब उसका मिसयूज हुआ तो आपने उसको अमेंड किया ना। किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में आप फार्मर्स को या कंज्यूमर्स को इग्नोर करके आप सत्ता में आ सकते हो क्या? दिस इज इम्पॉसिबल। इफ समबडी इज सेइंग कि द गवर्नमेंट विल अपीज ओनली द कैपिटलिस्ट और बाकी सबको छोड़ देगी, तो सरकार को क्या दोबारा सत्ता में नहीं आना? इतनी बड़ी आबादी है, ये संभव है क्या? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना। अब क्या हुआ, एक इंडिया में जो नया ट्रेंड चल रहा है, इट इज वेरी डेंजरस, कि लोग इकट्ठा होकर के अपना नंबर दिखा करके सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं। दिट्स अ वेरी डेंजरस साइन फॉर द डेमोक्रेसी। आपको दो चीज में बिलीव करना चाहिए, या तो आप सरकार से बात करके इशू को रिजॉल्व कर लो, और मैं तो कहूंगी कि आप बेटर ऑप्शन दो कि आप ये कर रहे हो, हमें ये चीज चाहिए, अब इस पे क्या अड़ना कि नहीं इसको वापस ही करो। तो पहली बात, यू हैव क्रिएटेड अ डेडलॉक। द सेकंड थिंग इज, इफ यू डोंट हैव फेथ इन द गवर्नमेंट, the legislation has already, the implementation has already been suspended, then wait for the decision of the Supreme Court. आप व्यवस्था में किसी पे तो भरोसा करोगे, और अगर आप सब कुछ अपने हाथ पे ले लोगे, then can you imagine in what direction we are moving? It is very dangerous thing। कल को बाहर को कोई खतरा है, यहाँ के अंदर के लोग गृह युद्ध शुरू कर देंगे। तो ये जो इंडिकेशन बार बार दिया जा रहा है, एंड इट इज हैपनिंग सेकेंड और थर्ड और फोर्थ टाइम, this is not a good sign for a democracy. Democracy means there should be a discussion. So either come up with a better idea, or if you are saying that this is wrong, this is unconstitutional, then wait for the decision of the Supreme Court. पर ये तरीका, इसका मतलब ये है कि अगर हमें सरकार ने कोई चीज पास करी और हमें नहीं पसंद है, तो हम तो कल सड़क पे आके इसको लागू नहीं होने देंगे। अभी ऐसे तो पूरा जम्मू कश्मीर उतर के आ जाएगी, 370 वापस करो, देन व्हाट यू विल डू? कल को सरकार पॉपुलेशन पे कोई लॉ लेके आती है, लोग आ जाएंगे नहीं इसको नहीं लागू कर देंगे, फिर क्या होगा? तो द सिस्टम कैन नॉट वर्क इन दिस वे वेयर यू आर ट्राइंग टू कीप द एंटायर कंट्री एज होस्टाइल। देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम एंड देयर शुड बी डिस्कशन। इसका मतलब तो ये कि जो चीज जैसे पड़ी उसको पड़ी रहने दो, उसको सुधार करने की कोशिश मत करो। अगर तुम करोगे तो हम सड़क पे आ जाएंगे, एंड इट्स अ वेरी थ्रेटफुल सिचुएशन। Perhaps we are not realizing the severity of the situation, but I think it is a very dangerous indication. ये बहुत ही खतरनाक है, और ये 2-3 बार हो चुका है। But they said कि आप इन लॉज को रिपील करो और कमेटी बनाओ, हम सजेशन देने को तैयार हैं। अभी देने में क्या दिक्कत है उनको? मैम, the way they are threatening, I don't think कि anybody can, have वही मैं faith. कह रही हूँ ना, आप जो है, the way you are threatening, that is a democratically elected government. How you can threat them? After 5 years you don't give your vote. But ये क्या, नहीं तुम कोई जिद होती है क्या कि नहीं तुम वापस ले लो तभी हम बात? No, ma'am, the police is also threatening them. अरे तो पुलिस को लोगों ने यार, उसमें तो मैं जाना नहीं चाहती। हाँ Ma'am, the slangs used by government is very wrong, ma'am. They called anti-nationalist, urban Naxal. This is not the right this way. is not the statement of the government. I have never said that any government deputed person had said this. But yes, the incident of देखो 26 जनवरी से पहले इस आंदोलन को लगभग सबका सपोर्ट था, but the incident of 26 जनवरी, that is highly objectionable. वो किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। पीयूष गोयल ने खुद ही बोला था कि अर्बन नक्सल्स मैम, सो
तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि उन्होंने गलत बोला था? मैम तो मतलब ये तो मैम कहना भी मतलब इफ यू आर टारगेटिंग नहीं, नॉट टारगेटिंग, इट इज ऑल्सो रियलिटी। देखो तुम लोग क्या है ना, तुम लोग अभी बहुत कम चीज पढ़े हो, तुमने ग्राउंड में काम भी नहीं किया, हम लोग करते हैं काम, इट्स अ रियलिटी। ये कोई गलत बात नहीं है। तुम जा करके किसी भी आदिवासी एरिया में जहां पर नक्सलिज्म पीक पे, वहां जा करके देखो, जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो कोई और है, लेकिन उनका दिमाग कहीं और से आता है। इट्स अ रियलिटी, ये कोई फेक टर्म नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है। Ma'am, I have a question. I would like to add पूछो। something. हाँ, मैम एक लीगल क्वेश्चन साइड से है कि वन साइड यू आर सेइंग कि एग्रीकल्चर इज इन एक्सक्लूसिवली ऑन स्टेट लिस्ट, इज इन स्टेट लिस्ट, और ऑन द अदर साइड यू डील्ड विद सम एंट्री 33 ऑफ कंकरेंट लिस्ट। मैम वुड यू प्लीज फोकस ऑन दिस? ये समझ में नहीं आया। हाँ, देखो मैं बता रही हूँ, देखो मैं बताती हूँ कि क्या है। एग्रीकल्चर जो है तुम्हारा वो एक्सक्लूसिव स्टेट लिस्ट में है। 33 एंट्री क्या कहती है कॉन्करेंट लिस्ट की? कॉन्करेंट लिस्ट की 33 एंट्री कहती है ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंड प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इसमें नीचे सारे एग्री प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं, समझ में आया ना? तो 33 क्या कहता है, ट्रेड एंड कॉमर्स को, प्रोडक्शन एंड सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन को पे लॉ बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को परमिट करता है, बिकॉज दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट। इसको यूज करके इसमें सरकार ने जो लॉ बनाया उसमें क्या किया, ट्रेड से रिलेटेड बनाया। ट्रेड से रिलेटेड क्या बनाया कि आप एपीएमसी मंडी में चाहो तो अपना, पहले क्या होता था कि अगर मैं किसान हूं और मैंने अपनी मेरी जो पैदावार है वो सिर्फ मैं एपीएमसी की मंडी में बेच सकती हूँ। और एपीएमसी की मंडीज क्या होती हैं, एपीएमसी की मंडी में जो ट्रेडर्स आते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस देती है। और लाइसेंस किस चीज का देती है कि सिर्फ वही, जिनको हम आढ़तिया कहते हैं, कि सिर्फ ये आढ़तिये ही इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट्स ने, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसको इतना कम्बरसम कर दिया कि ये आढ़तिये कुछ ही संख्या में रह गए और ये बहुत डोमिनेटिंग हो गए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इंटरनल कार्टेल बनाया। कार्टेल बनाने का, वहां पे मंडियों में बोली कैसे लगती है, अगर मैं गेहूं लेके गई तो एक ने बोला कि मान लो कि 1200 रुपए क्विंटल, दूसरे ने बोला 1400 रुपए क्विंटल, तो मैंने 1400 रुपए वाले को दे दिया मुझे, क्योंकि मुझे उससे हुआ फायदा। लेकिन इसमें क्या होता है, जब इन्होंने कार्टेल बनाना शुरू किया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला 1000 रुपए से ऊपर हम में से कोई नहीं खरीदेगा। तो ये खरीदेंगे, जो बोली हम लोग लगाएंगे 900 से 1000 रुपए की क्विंटल के बीच में लगाएंगे। तो किसान के पास क्या हुआ ना, ऑप्शंस खत्म हो गए, क्योंकि आप सिर्फ मंडी में बेचोगे और मंडी में ये लोग आएंगे जिनको क्या मिडिल मैन कहते हैं। इसको लेकर के स्वामीनाथन कमीशन की भी एक रिकमेंडेशन है कि ये मिडिल मैन को हटाने के लिए एपीएमसी को या तो खत्म किया जाए या अल्टरनेट ऑप्शन मार्केट का दिया जाए। तो सरकार ने ये जो अमेंडमेंट किया, इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन क्या दिया कि आप अगर मंडी में बेचना चाहते हो तो मंडी में बेचो, मंडी के बाहर बेचना चाहते हो तो आप किसी को भी बेच दो, दैट इज योर चॉइस। यहां तक कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट में ले जाकर के बेचना चाहते हो जहां पे आपको बेटर प्राइस मिल रहा है, तो आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे स्टेट की मंडी में ले जाकर के बेचो। चेंज इन्होंने क्या किया कि जब आप एपीएमसी में बेचोगे तो किसान को अपनी ही इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। और सरकार ने इसमें क्या किया कि अगर आप एपीएमसी की मंडी में बेचना चाहो तो बेचो, लेकिन उस पर आप टैक्स दोगे, बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे आप बाहर किसी और स्टेट में ले जाके बेच दो या अपने ही स्टेट में किसी और को बेचो। तो इस तरीके से बेसिकली एक तो ये अमेंडमेंट था। दूसरा क्या किया, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करी, जिसमें इन्होंने बोला कि आप कॉन्ट्रैक्ट करके सीधे जो दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि अभी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में हो रही है, हिमाचल में होती है, बहुत जगह होती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, लेकिन उसका अभी कोई लीगल शेप नहीं है। उसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जो कुछ कुछ स्टेट्स में हो रही है, उसको एक लीगल शेप देने करके यूनिफॉर्म करने की कोशिश की गई कि इससे आप गवर्न होगे। तीसरा जो इन्होंने किया वो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में किया, जहां पे पल्सेस को, वीट्स को, सीरियल्स को इन्होंने इसेंशियल कमोडिटीज से निकाल करके ओपन में कर दिया और बोला कि जब 100% या 50% राइज इनके प्राइस में होगा तभी हम इसको कंट्रोल करेंगे। और उसका इन्होंने लॉजिक दिया कि इतना ज्यादा ये सड़ जाता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, और इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होने के लिए जो 1 लाख करोड़ रुपए वेस्ट हो रहे हैं, जब तक इसमें कॉम्पिटिटिवनेस नहीं बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट सप्लाई चेन और स्टोरेज कैपेसिटी में नहीं होगा, तब तक हम इस चीज को
स्टोरिंग कैपेसिटी को, स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा नहीं पाएंगे। अब इसमें तीनों चीजें जो अगर हैं बेसिकली अगर देखोगे तो ये ट्रेडिंग से रिलेटेड है, इसमें एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई बात नहीं है। तो सरकार का, सेंटर का क्या कहना है कि हम 33 को यूज करके इस लॉ को मैंने बनाया है, हम सिर्फ एग्रीकल्चर को यूज करके नहीं बना रहे। तो मेरा इंटरफेरेंस स्टेट लिस्ट में नहीं है, हमने कॉन्करेंट लिस्ट में एंट्री 33 की अपनी पावर को एक्सरसाइज किया है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? यस मैम, आई एम गेटिंग, बट वन डाउट मैम कि एंट्री 33 में क्या कुछ सर्टेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ही दिए गए हैं क्या, जिस पे नहीं, law ऐसा बना नहीं है। सकती इसमें कैटल्स भी हैं, फूड नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसको पढ़ सकते हो आप, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें किसी भी चीज पे ये लेजिस्लेशन बना सकते हैं मैम। ठीक है ना। जी और हाँ। दूसरा एक चीज इसमें और है, जैसे जो एमएसपी की बात की जा रही है, एमएसपी का कभी भी स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं था। हाँ, बॉडी डिसाइड करती है, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है और वो एमएसपी डिसाइड करती है। और एमएसपी फसल बोने से पहले ही डिसाइड हो जाती है कि लागत का 50% ज्यादा ये मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होता है। तो मैम ये एमएसपी में भी तो सर्टेन प्रोडक्ट्स ही ना जिसमें कि एमएसपी लागू होता है। हाँ 23 प्रोडक्ट्स हैं जिसपे एमएसपी लागू होता है, 23 पे लागू होता है। और स्वामीनाथन कमेटी ने इस पे भी रिकमेंडेशन किया था, क्योंकि उनका कहना था कि इस एमएसपी से भी फार्मर्स का बहुत नुकसान हो रहा। तो वन कंट्री वन इकोनॉमी का जो वन मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है, ये स्वामीनाथन कमेटी में दिया हुआ था। और स्वामीनाथन कमेटी में ये तीनों चीजें रिकमेंडेड थी, जो इन्होंने 3 चीजें इसमें करी हैं। कुछ उसको मॉडिफाई किया है, कुछ चीजें एग्जैक्टली अप्लाई ना करके उसका मॉडिफिकेशन किया हुआ है। और मैम इस इशू से कैसे डील किया जाए कि जो बोला जा रहा है कि मैक्सिमम लार्ज नंबर में स्मॉल फार्मर्स हैं हमारे देश में, हाँ। तो जब कमर्शियलाइज कर दिया जाए जो को, तो जो बड़े ट्रेडर्स हैं या फिर जो उनका खरीदेंगे वो आगे चल के अपना लॉस कर लेंगे, जैसा आपने एपीएमसी का बात कर रहा था। नहीं, इसमें देखो, इसमें किसानों के दिमाग में 2 डर है और वो पेपर पे कहीं नहीं है। वो एक डर है, पहला डर इसमें क्या है कि एपीएमसी मार्केट को सरकार ने अभी बोला क्या, लॉ में लिखा हुआ है कि वो उसको एबॉलिश नहीं कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि हम जैसे आज, पहले हम लोग मजबूरी में बीएसएनएल लेते थे, आज हमारे पास वोडाफोन भी, हमारे पास जियो भी, हमारे पास 4 चॉइस और है। मेरा मन है कि मैं कौन सा सिम कार्ड लूं या कौन सी सर्विस प्रोवाइडर को मैं यूज करूं। किसानों के साथ पहले दिक्कत क्या होती थी, उनको मजबूरी में अपना सामान आढ़तियों को ही बेचना पड़ता था। और इनका कार्टलाइजेशन एफसीआई से भी और आपस में भी इतना ज्यादा है कि किसानों को रिक्वायर्ड से कम रेट पे ही अपनी चीजें, और एमएसपी की बात करें, एमएसपी पे आज भी सिर्फ 6% किसान अपने प्रोड्यूस को बेच रहे हैं। उसका कारण ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स की परफॉर्मेंस इतनी बुरी रही है कि स्टेट गवर्नमेंट्स आज भी मंडियां नहीं क्रिएट कर पाई है। कुछ स्टेट में 30-30 किलोमीटर में एक भी मंडी नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, मजबूरी में, चूंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपकी फसल रखी है, तो औने पौने दाम पे आपकी मजबूरी का फायदा उठा करके लोग जो आ रहे हैं आपके पास, जो आढ़तिया आ रहे हैं, आप एपीएमसी मंडी में उनको बेच रहे हो। सरकार का इसमें क्या कहना था, सरकार ने बोला कि हमने कंपटीशन बढ़ाया है कि अब अगर जो है कोई और आ रहा है, हो सकता है वो आपको बेटर प्राइस दे, क्योंकि कार्टलाइजेशन अंदर है, हम आपको फ्रीडम दे रहे हैं, आप कहीं भी जाकर के अपने प्रोड्यूस को बेचो। इसका जो प्रोटेक्शन किया जा रहा है, वो क्या किया जा रहा है कि शुरू में कॉर्पोरेट्स आकर के अच्छा प्राइस देंगे, लेकिन धीरे धीरे जब मंडियां खत्म हो जाएंगी तो ये प्राइस निगोशिएट करके इतने नीचे लेवल पे लेकर के आएंगे कि हम उनको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इस कारण से एपीएमसी इसका जो है विरोध किया जा रहा है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहली बार सरकार ने मंडी खत्म करने की बात नहीं करी है। दूसरा बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पंजाब जैसी स्टेट्स में कब से हो रही है, और पंजाब में सबसे ज्यादा संख्या छोटे किसानों की है। छोटे किसानों के साथ आज अगर आप लोग अपने गांव में भी देखोगे तो आप देखोगे कि किसान अपनी जमीन किस रेट से बेच रहा है। क्यों बेच रहा है वो इस रेट से? क्योंकि वो अपने एग्रीकल्चर से प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहा है। और निकाल क्यों नहीं पा रहा है? निकाल इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को सही जगह बेच नहीं पा रहा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब अगर हम ये कह रहे हैं कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इंडिया में, अगर वो 61 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, तो उसका फायदा किसान को क्यों नहीं मिल पा रहा है? किसान को इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि उसको अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए पहली बात सही जगह नहीं मिल रही है। दूसरी बात है उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। जिस दिन किसान ने स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप कर ली, उस दिन वो मनमानी दाम पे अपनी चीजों को बेच सकेगा। स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं है। स्टोरेज कैपेसिटी क्यों नहीं है? वो खुद बिल्डअप नहीं कर रहा और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा कि हम स्टोरेज बना करके आपको किराए पे दें।
क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है? क्योंकि वो कह रहा है कि अगर हम स्टोरेज कैपेसिटी करेंगे तो जो आपका इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसमें 7 साल की सजा है, आप तो आके हमको जेल में डाल दोगे। तो सरकार ने वहां पे रिलैक्सेशन दिया। तो दो चीजों पे किसानों को जो है समझने की जरूरत है। एक तो ये कि ये सिर्फ चीजें चल रही कि होंगी, और इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, ये चीज बहुत ज्यादा, जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि ये जो है अपना कोविड की वैक्सीन आने के पहले ही हो गया कि नहीं लोग मर जाएंगे इससे। तो लोगों की कमजोरी का फायदा उठा करके उनको मिसगाइड किया जाता है। इसके पहले भी हम लोगों ने सीए में देखा, जिससे सिटीजनशिप दी जा रही थी उसको लेके एक बड़ा हुआ क्रिएट किया गया कि सिटीजनशिप जाएगी, आज तक कितने लोगों की गई। तो एक पैनिक, इसका मतलब कुछ लोग तो हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो जिस स्टेट में जो स्टेट एमपी को फॉलो ही करता था, जैसे बिहार में ये ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं था, तो उस स्टेट को तो देखा जाए वैसे टेक्निकली तो केवल फायदा ही हो सकता है, घाटा का तो कोई चांस नहीं है। देखो वहां पे क्या हुआ, जैसे एमएसपी का सबसे ज्यादा जो पोर्शन है वो पंजाब को जाता है। एमएसपी फिक्स होने के कारण पंजाब में क्या हुआ ना कि एमएसपी का इसीलिए विरोध भी किया जा रहा है। कई बार कहा जाता है एमएसपी को हटा दो, क्योंकि वो एक किसान उस चीज को अपनी जमीन पे उगाना चाहता है जिसके लिए एक्चुअल में वो जमीन है नहीं। पंजाब में ऐसी ऐसी चीजों की खेती होने लगी जिसके लिए बहुत ज्यादा पानी रिक्वायर्ड था, और आपने देखा कि पंजाब में एक तो लैंड बैरन हो रही है और दूसरा वहां पानी नहीं रह गया। और जब वो सरप्लस प्रोड्यूस करते हैं ना तो बिहार या यूपी जैसे स्टेट्स के गेहूं और चावल की डिमांड को कम कर देता है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि बिहार और यूपी के किसान को अपनी प्रोडक्ट का उतना फायदा नहीं मिल पा रहा है जितना कि पंजाब को मिल रहा है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि बिहार का प्रोडक्ट का जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पे दिक्कत क्या है, किसान अपने प्रोडक्ट को सही प्राइस पे बेच नहीं पा रहे हैं, नंबर एक बात, और दूसरा वो उसमें वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहे हैं। ये दो चीजें जब तक नहीं होंगी आपको कोई ना कोई तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, या आप ऐसे ही रहोगे। छोटे किसान बहुत लंबे समय तक, दादाजी थे उनके पास इतनी जमीन थी, पिताजी थे तो 4 भाई थे तो 4 में बढ़ गए, अब हम में से उनमें से हर 4 भाई के जो 4-4 बच्चे हैं, तो आप सोचो आपकी खेती की साइज क्या रह गई, उसमें से आप कोई प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। तो आपको कोई ना कोई तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना, ये देखने के लिए कि हम इसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाएं। एंड यू विल नॉट बिलीव कि इंडिया को हम कहते हैं कि किसानों का देश है, सिर्फ 12 करोड़ किसान है आज इस देश में, और खेती छोड़ने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि आने वाले कुछ समय में खेती करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे। कोई किसान नहीं चाहता कि उसका बच्चा इस फील्ड में जाए। और एक चीज याद रखना जो मैं फिर बोल रही हूँ, चाहे हम सेल्फ रिलायंट की बात करें, चाहे हम जॉब की बात करें, जब तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म नहीं करेंगे, इकोनॉमिक जस्टिस और सेल्फ रिलायंट, ये दोनों चीजें संभव नहीं है, क्योंकि इंडिया की स्ट्रेंथ ही एग्रीकल्चर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस पे कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है, और यही रीजन है। अब उसका क्या मॉडल हो इस पे डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन ये कि हम चेंज ही नहीं होंगे, पर्सनली आई बिलीव कि ये ठीक नहीं है। आप चेंज ही नहीं होगे तो आप क्या ऐसे ही अपनी खेतों को छोटा छोटा करके आत्महत्या करके खत्म होना चाहते हो? आप बेटर ऑप्शन के साथ आओ ना, पर आप आओ तो सही, आप बताओ तो सही। हम बात नहीं करेंगे, इसको हर हालत में लेना पड़ेगा, मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर द डेमोक्रेसी, ये ठीक नहीं है। मैम एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बताओ। मैम कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन के जगह अगर पीएसयू के थ्रू ये किया जाए तो ज्यादा एफिशिएंट होगा, फार्मर भी इससे रिलायबल। वही तो मैं कह रही हूँ, आप सजेशन तो दो, डिस्कशन तो करो आप कि पीएसयूज हैं कि क्या है, कि कैसे होगा, कौन सा वो होना चाहिए। आप बात यही तो होती है कि आप डिस्कशन करो कौन सा मॉडल बेटर होगा। और पीएसयूज में भी जैसे सरकार का जो एफसीआई का मॉडल है, सबसे ज्यादा करप्ट आपका एफसीआई है मैम। लेकिन पीएसयू में अगर इंडियन ऑयल वगैरह है तो वो लोग तो बहुत प्रॉफिट सीकिंग पीएसयू है, वो तो बहुत पीएसयू जो इंडियन ऑयल है वो एग्रीकल्चर में क्यों आएगा? आपको नया कोई तरीका डेवलप करना पड़ेगा। उसी मॉडल पे अगर डेवलप किया जाए पीएसयू, हाँ सोचा जा सकता है। तुम देखो ना अमूल जैसी जो वो थी, वो किसानों का ही तो कलेक्टिव एफर्ट था, उन्होंने कैसे किया, लिज्जत पापड़ ने कैसे किया। तो आप कोई तो एक्सपेरिमेंट ट्राई करोगे ना चीजों को, आप बोलो कि हम करेंगे भी नहीं और करने भी नहीं देंगे। मतलब मैं एज एन इंडिविजुअल आई ऑलवेज प्रिफर कि हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो आप पता कैसे चलेगा कि सही है कि गलत है? लॉ तो इवॉल्व होता है ना, चीजें तो इवॉल्व होती हैं। अब आप कहो कि हम उसी तरीके से करेंगे। यूरिया का कितना नुकसान हुआ, अभी जो आपका ये नीम कोटेड यूरिया आया है, इसने कितनी हेल्प करी किसानों की। आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो छोटे होते जा रहे खेत हैं, इनको हम कैसे रोकेंगे और कैसे हम किसानों को कंसोलिडेट करेंगे कि वो खेती छोड़े ना।
क्योंकि आप आज सबसे बड़ी जरूरत ये है कि लोगों का जो पलायन गांव से शहरों की तरफ हो रहा है उसको आप गांव में रिटेन करो। और आप कैसे रिटेन करोगे अगर आप वहां एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे? तो एम्प्लॉयमेंट गांव में कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चर से ही आएगा ना। पर एग्रीकल्चर में आने के लिए आपको एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करना पड़ेगा। बिना रिफॉर्म के आप कैसे लोगों को रिटेन कर सकते हो? तो एक डिस्कशन की तो जरूरत बहुत ज्यादा है और कोई ना कोई हमें चेंज इसमें लाने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जब करोगे तभी तो तुमको पता चलेगा कि क्या गलत और क्या सही है। हमारे यहाँ दिक्कत क्या होती है ना, बिना करे हम डिक्लेयर कर देते हैं कि गलत है, और यही मुझे ऑब्जेक्शन होता है। आप करके देखो कि गलत है कि सही है। आपके पास एक डेमोक्रेसी में पीछे जाने का ऑप्शन हमेशा होता है। और दूसरी बात मैं कह रही हूँ कि अगर सेंटर ने गलती करी तो ये स्टेट गवर्नमेंट अभी तक क्या कर रही थी, जो कह रही थी हमारे यहाँ किसान इतने पिछड़े, एग्रीकल्चर तो एक्सक्लूसिवली उनके डोमेन में आता है ना। इनको जवाब नहीं देना चाहिए कि इन्होंने पिछले 30 सालों में 90 से लेके 2020 तक क्या किया? इनसे कोई जवाब क्यों नहीं मांगता? आज तक ये जो अभी धरना प्रदर्शन हो रहा है, इन स्टेट गवर्नमेंट से कभी क्यों नहीं क्वेश्चन पूछा गया कि इस देश में 3 लाख किसानों ने क्यों सुसाइड किया? तुम बताओ मुझे, आज तक कोई किसी ने सवाल उठाया है कि 3 लाख किसान क्यों मरे इस देश में? मैम एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बताओ। मैम जो अपोजिशन हो रहा है फॉर्म लॉज का, तो मैम बेसिकली इसके पीछे क्या पॉलिटिकल रीजंस हैं या कुछ लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट हैं जो किसानों के इमोशंस का यूज करके ये जो देखो मेरा अगर तुम, हाँ तुम समझ गए, मेरा अगर तुम पूछोगे तो इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है और ये पूरा का पूरा उन्हीं का मोबिलाइज है ये। क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम आ रही, जो अब ये बड़े बड़े आढ़ती होते थे ना, इनकी इनकम डिस्क्लोज होगी, इनको टैक्सेस देने पड़ेंगे, उसको उस पे जीएसटी लगेगी और इनको इनकी सारी डिटेलिंग करके प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी। तो कुछ बड़े लोगों को, क्योंकि अब अभी तक क्या होता था, अभी तक मजबूरी थी ना, मैं अपने सामान को सिर्फ 2 लोगों को बेच सकती हूँ और उन 2 लोगों में कार्टलाइजेशन है। अब आप मुझे उन 2 लोगों को बेचना ही नहीं, मेरे लिए 5 ऑप्शन और हैं, तो वो 5 ऑप्शन क्या उन 2 लोगों को अच्छे लगेंगे? और इसमें क्या किया जाता है कि भड़काया जाता है। और अभी जो बात की जा रही है, मैंने ये बात मैं फिर बोल रही हूँ, मैंने मार्च में बोली थी, अगर तुम में से जो लोग भी मेरे स्टूडेंट नहीं रहे होगे, आई एम श्योर कि इस देश को सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है, अंदर से भी और बाहर से भी। और बाहर से इस समय चाइना को सबसे ज्यादा खतरा इंडिया से लग रहा है। तो चाइना, और उसके बाद आपका जो अभी बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया है, क्योंकि आपने देखा है इंडिया ने जो कोवैक्सीन बनाई है, बहुत सारे देशों को ये भी हजम नहीं हो रही है। जब आप स्ट्रेंथन होने की कोशिश करोगे, आपको बाहर से डिस्टेबलाइज किया जाता है, उसके लिए प्रॉपर फंडिंग होती है, ये एक फैक्ट है। और इसके मैं आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि किस तरीके से लोगों को भड़काया जाता है। प्रॉब्लम क्या होती है, कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता, और जो झूठ होता है ना वो बहुत तेजी से फैलता है। तो लोगों का एक पैनिक बटन दबाया जाता है, जो हम लोगों ने देखा सीए के केस में दबाया गया, लोगों को डराया गया, और वही पैनिक बटन एक बार फिर से दबाया जा रहा है। तो उसमें क्या होता है, लोग बिना सोचे समझे आ जाते हैं। जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो ऐसा नहीं, उनमें से ज्यादातर लोगों को नॉलेज भी नहीं, और मैं खुद बता दूं कि मैक्सिमम लोगों ने तो इसको पढ़ा भी नहीं होगा कि इसमें लिखा क्या है। तो आपके अंदर एक डर क्रिएट किया गया, और डर जो होता है ना बहुत खतरनाक चीज होती है, क्योंकि वो किसी भी लेवल पे आपको रेजिस्ट करने के लिए कंपेल करती है। तो आई थिंक लोगों को भी एक बार इसको पढ़ना। हेलो मैम। हाँ बताओ मैम, इसमें एक क्वेश्चन था मैम, जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, जो हाँ SDM वो इशू है, वो इशू है। और एक और इशू है मैम, जो आप कह रहे हैं, जो फर्स्ट लॉ है उसके अंदर मैम सेंटर ने ऐसा कानून बना दिया है कि स्टेट इम्पोज नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? फिर से बोलो, स्टेट क्या नहीं कर सकता? तुम्हारी आवाज नहीं आई मुझे, फिर से पूछो क्या पूछ रहे हो। देखो इसमें डिस्प्यूट रेड्रेसल जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। इसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे बात जरूर होनी चाहिए, आई एम 100% एग्री, क्योंकि इन्होंने 3 लेवल का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बनाया है। और लेकिन एक चीज, कुछ चीजें इसमें काफी अच्छी हैं, जैसे किसी भी हालत में किसान की जमीन पे कोई एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम आपका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसमें ये कहीं नहीं होगा कि किसान की जमीन किसी को जाएगी जो एग्रीमेंट में घुस रहा है। और दूसरा इन्होंने क्या एक जो अभी किया, जो मुझे ठीक लगा, इन्होंने बोला कॉन्ट्रैक्ट का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा वो सरकार तैयार करेगी, वो कॉर्पोरेट नहीं तैयार करेंगे।
दूसरी बात। लेकिन इसमें डिस्प्यूट रेड्रेसल का जो मैकेनिज्म है उस पर जरूर डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने 3 लेवल बनाए हैं वैसे, एक तो कंसिलिएशन बनाया हुआ है, दूसरा एसडीएम और तीसरा एपिलेट अथॉरिटी है। इसको ऐसा करना चाहिए या कोई नया मैकेनिज्म आगे बने या इस पर डिस्कशन हो, इस पर डिस्कशन करो कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे होगा। दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक चीज वही होती है ना कि जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे आपको पता नहीं चल सकता कि इसमें क्या कमियां हैं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है। या तो आप वैसे के वैसे पड़े रहो कि हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, और अगर आपको चेंज करना है तो बिना एक्सपेरिमेंट के आपको कैसे पता चलेगा कि क्या सही और क्या गलत है। तो डिस्प्यूट रेड्रेसल पे जैसी चीजों पे निश्चित तौर पर मेरे हिसाब से डिस्कशन होना चाहिए कि इसको कैसे ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाए। राइट? बाकी तुम लोग एक बार खुद भी पढ़ो और तुम लोग सोचो कि क्या इसके लिए कुछ बेटर ऑप्शन आ सकता है। क्या बात होनी चाहिए ऑप्शंस पे, इस पे बात नहीं होनी चाहिए कि हम चेंज ही नहीं होंगे, फिर तो आपकी स्थिति ऐसी ही रहेगी। ऐसे ही आपके खेत छोटे होते जाएंगे, जमीनें बिकती जाएंगी, कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ, जैसे आपने बीएसएनएल और अदर जियो एयरटेल का आपने एग्जाम्पल दिया नेट का, तो मैम बीएसएनएल तो अब मोस्टली खत्म ही हो गया है क्योंकि ये सारी चीजें आ गई, तो बीएसएनएल अब लेता ही कौन है? नहीं तो बीएसएनएल आप क्यों नहीं ले रहे हो? आपको बेटर ऑप्शन मिल रहा है ना। हाँ, तो वही जो आप कहते हैं कि एपीएमसी का इनको डर है, तो ऐसे तो वही तो मैं आपसे तुमसे हम यही तो कह रहे हैं कि आपने बीएसएनएल इसलिए छोड़ा कि आपको बेटर ऑप्शन मिला, लेकिन बीएसएनएल खत्म तो नहीं हुआ ना। तो मैम जब कोई लेगा ही नहीं उसे तो फिर वो रहा भी कहाँ? अरे तो वही तो हम तुमसे कह रहे हैं, जब एपीएमसी से बेटर ऑप्शन तुमको मिलेगा तो तुम मंडी में क्यों जाओगे? तो इसका मतलब थोड़ा ना मंडी खत्म हो जाए। नहीं मैम, मंडी के अलावा ऑप्शन तो दे तो नहीं ना सरकार दे रही है कुछ और। क्या चीज? मंडी तो कह रहे हैं चलेगी, मंडी के अलावा कोई नए ऑप्शन तो नहीं। अभी भी तो मंडी में ऑप्शन हो रहा है, मंडी में कौन जा रहा है? मंडी के अलावा ऑप्शन कैसे मिलेगा? मंडी के ऑप्शन सरकार कैसे देगी? वो तो तुम, मुझे खरीदना है तो मैं जाके बोलूंगी कि मेरे को इतने रेट पे दे दो, इनसे ज्यादा पैसा हम तुमको देंगे। आज अगर बीएसएनएल खत्म हुआ तो उसका एक बड़ा रीजन ये था कि बीएसएनएल का परफॉर्मेंस प्राइवेट के कंपैरिजन में अच्छा नहीं था। अगर आज मुझे बीएसएनएल अच्छा मिल जाए तो मैं जियो क्यों लूंगी? हेलो मैम। मैम जो फर्स्ट लॉ था आपने कहा था मैम, जो फर्स्ट लॉ है उसमें ये लिखा हुआ मैम, जो स्टेट इम्पोज नहीं कर सकता टैक्स मैम आउटसाइड द एपीएमसी में, पर एपीएमसी पे तो टैक्स लगता है ना मैम, जो कमीशन एजेंट बैठते हैं उनपे तो लगता है टैक्स। नहीं तो स्टेट हाँ लगता है, तो स्टेट को क्यों एपीएमसी के बाहर टैक्स लगाना चाहिए? वो किसानों को भी तो देना पड़ता है टैक्स। हो या तो दोनों को छोड़ो मैम, या दोनों को लगाओ मैम टैक्स। नहीं, आड़तियों की पोजीशन नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आड़तियों की पोजीशन ज्यादा पावरफुल है मैम। इससे तो एपीएमसी अपने आप ही खत्म हो जाएगी ना मैम। किससे? जैसे मान लीजिए टैक्स आउटसाइड द। अरे भाई एक बात तुम मुझे बताओ, टैक्स देने के बावजूद भी अगर हम 100 रुपए पर कुंटल मंडी में बेचेंगे और टैक्स बिना दिए अगर हमें 90 रुपए में मिलेगा तो हम बाहर क्यों बेचेंगे? हम तो मंडी में ही बेचेंगे ना। हम तो बाहर तब बेचेंगे जब हमें क्या बोलते हैं, बाहर 110 रुपए मिलेगा। मंडी का स्टेटस तो रहेगा ना, मंडी का स्टेटस थोड़ी ना खत्म हो रहा है। ये आपके ऊपर है कि आप मंडी में जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो। अटेंडेंस टाइप कर दीजिए सब लोग, है ना? तो इसको तुम लोग एक बार पढ़ना, पढ़ने के बाद इसको देखना, क्योंकि इस पर डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस मेरे हिसाब से होने चाहिए। ले ही तो ली, लगभग तो पढ़ा ही दिया तुम लोग को। मैम जिस तरह से फार्म बिल में इम्प्लीमेंटेशन सरकार ने की, उस तरह से बीएसएनएल में क्यों नहीं किए थे कि बीएसएनएल को बचाने के लिए? क्या चीज? जैसे फार्म बिल में रिफॉर्म लाई गवर्नमेंट, उस तरह से बीएसएनएल को बचाने के लिए बीएसएनएल में रिफॉर्म क्यों नहीं लाई गवर्नमेंट? बीएसएनएल को अभी तो उन्होंने काफी इम्प्रूव किया है। बीएसएनएल कब खराब हुआ था? बीएसएनएल की हिस्ट्री जाके पढ़ना जरा पहले। गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत मैम, जिसका ह्यूमैनिटेरियन लॉ है वो आप लेफ्ट कर दीजिए, और जिसको मैम से क्वेश्चन करना वो। अच्छा नहीं, अब मैं खुद भी निकलूंगी, मेरी क्लास है, तुम लोग से कल मिलेंगे हम। ठीक है, एक बार तुम लोग भी पढ़ना इसको, बिना पढ़े बिना सुने अपनी ओपिनियन नहीं बनानी चाहिए। लॉ की फील्ड में ये जरूर ध्यान रखो। और चेंज आपको करना पड़ेगा, करना भी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव चीजों के लिए। ऐसा नहीं कि ये तीनों लेजिस्लेशन परफेक्ट हैं, तो डिस्कशन उसकी कमियों पे होना चाहिए, या अगर तीनों को नहीं लाना तो हमें क्या लाना है। लेकिन हमें कुछ नहीं लाना,
मेरे हिसाब से ये ठीक अप्रोच नहीं होती है। तो इसीलिए जो है अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को जिंदा रखना है तो इसको हमें हर हालत में प्रॉफिटेबल बनाना पड़ेगा, और उसका जो भी तरीका होगा उस पर डिस्कशन होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर अब मैं नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। मेरी नेक्स्ट अभी क्लास है 12:30 बजे से। ठीक, ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, बाय।